Hey guys, this is Sumit Mehra and welcome to my show Talk with Sam. Today we are going to meet Albert sir. So first of all sir, how are you? Hi Sumit, nice meeting you. I'm good, I'm fine. How are you? I'm great sir, all the grace of God. Okay. Sir, tell me about your class. As you know, this is a spoken English class, and I believe that language can be learned in a homely atmosphere. Because the very first time we learned to speak was by a mother. We were in a cozy home, and a mother would coo over us, and that's how we learned the first language. So I try to create the same atmosphere in my classroom, a homely and a friendly atmosphere. Sir, do you teach grammar in the class or it's about speaking only? See, grammar is important, but I don't believe that through grammar, you can learn spoken English. I believe the other way around. First, you learn spoken English, and then you can improve yourself or correct yourself through grammar. Yes, I agree, grammar is important to learn spoken English, but that's not the only way of learning spoken English. You see, how do we learn Hindi? Do we know Hindi grammar? No. We learn Hindi through listening. So the same way we can learn English also through listening. So basically, I teach the basic grammar and then mostly I concentrate on speaking. One day, a lady, she went to visit her family. She wanted to visit the mother of the family, but the mother was not present over there. So she went and Chintu, a small kid, was over there. So she said, "Hi Chintu, how are you?" So Chintu said, "I'm okay, auntie." She asked, "Where is your mummy?" Chintu said, "Mummy ain't home." Auntie said, "Chintu, where is your grammar?" Chintu said, "Grandma is upstairs taking a nap." So, without grammar, also we can converse. It's not necessary that we should know grammar. Slight mistakes we can make, in grammatical mistakes we can make. In India, it is allowed. But we feel that in English we should speak grammatically correct. No, that's not it. We can also use some Hindi words when we forget something, so we can use some Hindi words. So, sir, do you think means 60 days enough? You know, today students come, they want instant English because they don't have time. At least my students don't have time. They want to learn instant English. You remember that saying, that commercial Maggie, when little child comes and says, "Mummy, mummy, bhook lagi." But mummy says, 2 minutes. 2 minutes. And 2 minutes, when she prepares Maggie and gives it. The same way that my students come to my class and says, Sir, English सीखना है. I say 2 months. And I teach them English in 2 months. सर आपके पास कभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट आया जो बोले कि मेरे पास 2 मंथ का भी टाइम नहीं है, मुझे सर 1 हफ्ते में सिखा दो या 5 दिन में सिखा दो? है, ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास. हाँ, मुझे याद आ रहा है, एक स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा, "सर, मुझे जल्द से जल्द इंग्लिश सिखा दीजिए." मैंने कहा, "भाई, इतनी जल्दी भी क्या इंग्लिश सीखने की?" उसने कहा, "नहीं सर, मेरे लिए एक रिश्ता आया था और उन्होंने मुझे पसंद किया और जाते जाते मेरी होने वाली सास ने मुझसे पूछा, तुझे अंग्रेजी बोलनी तो आती है ना?" मैंने कहा, "हाँ आती है." तो सर जल्दी से सिखा दी. सो सर आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब स्टूडेंट्स में भी फ़र्क होता है ना, कोई बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है या कोई पहले से इंग्लिश मीडियम से है, सो मीन्स डिफरेंस होता होगा। तो सर 2 महीने में हर कोई सीख जाता है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? देखो, पांचों उंगली बराबर बराबर तो है नहीं. कोई लोग होशियार होते हैं तो कोई लोग कम होशियार होते हैं. और मैं तो सभी को गारंटी लेता हूँ, अगर इफ द स्टूडेंट नोज द बेसिक इंग्लिश, लाइक आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, अगर छोटे छोटे वर्ब्स आते हैं जैसे कम, गो, सिट, स्टैंड, अगर आपको ये पता है तो मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि 2 महीने में आपको इंग्लिश आ जाएगी. मेरा एक ही शर्त है, मेरा मेरा क्लास का मोटो मोटो यही है, यू गिव मी रेगुलरिटी, आई गिव यू गारंटी. आप मुझे रोज आओ तो मैं आपको फुल गारंटी दूंगा. मैं कोई आपको बहाना नहीं दूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि आपने ये नहीं किया, आपने होमवर्क नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं दूंगा. आप बस 2 महीने का अटेंडेंस बता दीजिए मुझे और आप यहाँ से फ्लुएंट इंग्लिश बोल के जाओगे, ये मेरी गारंटी. सर मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो मुझे बता रही थी कि वो अभी इंग्लिश क्लास जा रही है और उसे 6 महीने हो गए, पर वो अभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकती। और मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि सर अभी ग्रामर सिखा रहे हैं, मीन्स लास्ट 6 मंथ्स। ये देखो,
Each sir has his own style of teaching, his own method of teaching. कोई सर को लगता है कि नहीं ग्रामर सिखाना है और ग्रामर अगर पूरा आ गया तो लोगों को इंग्लिश आ गई, परंतु मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि पहले आप उसको बोलना सिखाइए, make him speak, and unless he does not speak, he will not learn spoken English. Yes, when he is speaking, we can correct him. Grammatically, we can correct him. Yes, basic grammar we should know. It's not that we should know the detailed grammar, but there are a lot of classes I know that they are teaching the detailed grammar. I don't teach the detailed grammar. I only teach the tenses and that too the present simple, past simple, future simple, present continuous, past continuous. Bas that much. And on these 5 tenses, I make my students talk, and they are talking English in 2 months. So I don't know what this girl. Actually, what happens? The teaching, it's a two-way process. अगर सर अच्छा है और स्टूडेंट अच्छे नहीं है तो भी नहीं सीखेंगे स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स अच्छे हैं और सर का पढ़ाने का तरीका या सर ठीक से बता नहीं पाते हैं तो फिर भी स्टूडेंट्स नहीं सीखेंगे। तो मैं ये नहीं बता सकता कि गलती किसकी है, स्टूडेंट की है कि सर की है। Sir, someone told me you were doing a government job and now you are teaching English. So ये क्यों सर सा? हाँ, मेरे पास एक अच्छा I had a cushion job, government job. I was working for the Ministry of Finance. But it's not that I left my job. Side by side, I was teaching also. I used to get up in the morning before office hours and take my classes. And then after coming from office, I would take my classes. So English and my job went side by side. I took retirement towards the fag end of my career. Because what happened that I was transferred to Delhi, so I could not conduct my classes. And I love my students. I love talking to them. I enjoy whatever they come and tell me. So I thought I'd better leave my job and spend more time with my students. So I took VRS and now I'm only teaching. Volunteer. I'm taking voluntary retirement, yes. My mother-in-law, she was a spoken English teacher. And one day she came to my house and she told me that there are 2 boys who want to learn spoken English from a gent because they were feeling shy to learn from a lady. So I said, but I don't teach. So she said, your mother tongue is English. Yes. It's not difficult for you to teach. So you start teaching the boys. At least you'll get some extra income. So I said, okay. Then my brother, he was a principal of St. Xavier's. Now he's retired as a principal of CBS. I called him and I told him that I am going to teach some students. So how should I start teaching? So he referred me to a Nagpur Learning Center. And he said, you go and observe how they are teaching. So I went there and then I observed them teaching. And they were teaching them grammar and how to construct sentences. और मुझे लगा अच्छा ग्रामर है, ये तो मैं सीख लूँगा आराम से. So what I did, I bought the Wren and Martin book. ग्रामर की किताब होती है. Yes. वो Wren and Martin book मैंने खरीदा और वो लाया और पूरा मैंने रट लिया अच्छे से. और फिर मैं ग्रामर के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया. जब ये स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आते थे, बड़े खुशी खुशी आते थे. ऐसा लगता था उन लोग अरे हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था उनको. और वो आते थे और फिर जब मैं उनको पढ़ाता था, ग्रामर पढ़ाता था, तो जैसे जैसे पढ़ाता था ऐसा लगता था कि उनके कंधे पर कुछ बोझ है. एंड दे हैड लॉन्ग ड्रॉन फेसेस. अब जब जाते थे बेचारे ऐसे जाते थे कि एक पहाड़ उठा के लेके जा रहे. और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था. आई ऑल्सो डिड नॉट एंजॉय टीचिंग देम. मैं सोचता अरे यार आज ये पढ़ाए कल क्या पढ़ाऊँ, आज ये पढ़ाए कल क्या पढ़ाऊँ. तो मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा था. तो एक दिन क्या हो गया, जब मैं स्टूडेंट्स को एक सिंपल ग्रामर रूल समझा रहा था, बड़ा सिंपल सा रूल था, मुझे तो लग रहा था बड़ा सिंपल है, तो उसके दिमाग में जा ही नहीं रहा था. मैं ठूस के उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी रूल उसमें नहीं जा रहा था. तो ये बेचारा बड़े घबरा गया था और मुझे भी बड़ी चिढ़ आ रही थी. उतने में मेरी बेटी आई, मेरी बड़ी बेटी, उस समय वो 2 साल की थी. तो वो आई क्लास में और मुझसे अंग्रेजी में बातें करना शुरू की. तो मैंने भी उसके साथ बात किया और फिर कहा बेटा तुम अंदर जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ. तो वो अंदर चली गई. स्टूडेंट ने कहा सर आपकी बेटी तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है. मैंने कहा हाँ हमारा मदर टंग इज इंग्लिश, इसलिए वो अच्छी अंग्रेजी बोल रही है. उसने कहा नहीं सर वो तो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी. मैंने कहा अच्छा.
मैं जब वो सोती है ना तो मैं उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ, और बेड टाइम स्टोरीज में ऐसे बड़े बड़े शब्द होते हैं तो उसको याद हो गया, इसलिए उसने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा सर आपकी बेटी को ग्रामर आता है क्या? ग्रामर, एक 2 साल की बच्ची को ग्रामर? उन्होंने कहा सर जैसे आपने अपनी बेटी को इंग्लिश सिखाया ना वैसे ही हमें सिखाई है। उस दिन से मैंने अपना पूरा स्टाइल चेंज किया है। अब मैं सिर्फ स्टूडेंट से बात करता हूँ और उनको इंग्लिश सिखाता हूँ। अब मुझे भी टेंशन नहीं होता है क्या क्या सिखाना है, क्या करना है, और स्टूडेंट भी बड़े खुशी से आते हैं और यहाँ पे क्लास में बड़ा एंजॉय करते हैं और जाते हैं। So if a student is enjoying my class and if he is coming regular to my class, definitely he is going to learn spoken English, and I guarantee this. And I've seen the changes that have taken place. तो सर जैसे आप पढ़ाते हैं, फिर कोई नया स्टूडेंट आता है कोर्स के बीच में, तो आप फिर मैनेज कैसे करते हैं? किसी को 30 दिन हुए होंगे, किसी को 25, किसी को 20, या कोई अभी आया, फिर सब एक साथ कैसे पढ़ते हैं? देखो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स जो है लिमिटेड है, मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखता हूँ क्लास में, क्योंकि मेरा मानना है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब स्टूडेंट्स ने स्पीकिंग करना है, ना कि सर ने बोर्ड के ऊपर पढ़ाना है, ना कि सर ने बड़े बड़े लंबे लेक्चर देना है। ये मेरा मानना नहीं है। तो अगर जब कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो छोटी क्लास अच्छी क्लास, ये मेरा मानना है। तो जब कोई स्टूडेंट्स, या आपका कहना सही है कि कोई स्टूडेंट्स बीच में भी आते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि क्लास 1 तारीख को शुरू हुआ और 30 तारीख को खत्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो बीच में आते हैं वो मेरे पास बैठे रहते हैं और उनको थोड़ा बेसिक ग्रामर समझाता हूँ, और दूसरे स्टूडेंट्स को मैं अपना ऑडियो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, और फिर उन लोग सुनते हैं, और फिर जब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ तो उन लोग वो ऑडियो सुन रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे, और फिर जब इनका पढ़ाना हो जाता तो फिर वो मुझे वो स्टोरी बताते हैं, फिर मैं स्टोरीज में कुछ प्रश्न पूछता हूँ, फिर उनसे कॉन्वर्सेशन करता हूँ, फिर कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स प्रश्न पूछता हूँ, और इस प्रकार से मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। सर सभी टीचर्स को मैंने देखा भी, ज़्यादातर टीचर्स जो यूट्यूब के भी हैं, वो लोग कहते हैं कि ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एक्चुअली। सो सर कुछ ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट ग्रामर में होगा? मीन्स हमने हिंदी स्टार्ट से सुनी है, सो वी कैन स्पीक हिंदी, पर इंग्लिश इज सेकेंडरी। सो सर कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना, 4-5 चीज़ें जो ग्रामर में कंपलसरी हो। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेंसेस के हम अगर टेंसेस में गलती की है तो फिर वो अलाउड नहीं है। परंतु टेंसेस भी मैंने कहा ना कि हमारे जो पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, ये 5 में 90% ऑफ ग्रामर कवर हो गया टेंसेस का। बाकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑटोमेटिकली बाद में आ जाएगा। तो ये मैं पढ़ाता हूँ। फिर शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो हम कन्वर्सेशन में करते हैं, तो शॉर्ट सेंटेंसेस भी है। फिर मॉड्यूल्स, वो भी पढ़ाना पड़ता है। तो ये बस इतना ही पढ़ाता हूँ, और फिर थ्रू स्पीकिंग, थ्रू रीडिंग ऑटोमेटिकली हमारी इंग्लिश सुधरती जाती है। तो हाँ, ये ग्रामर तो पढ़ाना जरूरी है। सर अगर किसी स्टूडेंट, अगर कोई बहुत गरीब है और उसके पास पैसा नहीं है अगर क्लास में आने का, तो मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो घर बैठे मतलब सीख सके थोड़ा बेसिक? मैं भी एक गरीब परिवार से उभरा हूँ। एक 4 to 5 फ्री क्लासेस देता हूँ, 4 से 5, और वहाँ पे गरीब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरा फीस नहीं दे पाते हो ना, तो आप 4 से 5 मेरे दूसरे क्लास में आइए, और वहाँ पे मैं वही पढ़ाता हूँ, वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में सारी चीज़ है। यूट्यूब में जाएंगे तो आपको यूट्यूब में पता चलेगा ये क्लासेस कैसे लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश के गाने सुनो, इंग्लिश के न्यूज़ सुनो, इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे किसी का इंटरव्यू सुनो, या फिर सेकंड है रीडिंग। जितना आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग जो है अपने जोर से पढ़ना, क्योंकि जबान चलनी चाहिए आपकी, मन में नहीं करना, अपने जोर से बोलना, और एक पैराग्राफ को 5 बार बोलना। और जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं, जो शब्द आपको नहीं आते हैं, उसको गूगल में जाके सर्च कीजिए उसका मीनिंग, और देखो, फिर उसको मीनिंग लगा के फिर से बोलो। उसमें गूगल में आपको तो प्रोनाउंसिएशन भी देंगे कि किस प्रकार से उसका उच्चारण करना चाहिए। सर क्लासेस में अलग अलग एज के लोग आते होंगे, अभी कुछ जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। लाइक अभी अगर आप मुझे मैथ्स दे देंगे 12th की, तो मुझे सालों हो चुके हैं छोड़े हुए, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को। तो ऐसा होता होगा ना कि जिनकी ग्रामर या बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी है, 20-25 साल हो चुके हैं लगभग, कोई 50 साल का, 55 साल का है,
तो उसे कुछ अनकंफर्ट सा लगता हो, ऐसा कुछ आपने देखा कभी? हाँ, देखो मेरे क्लास में अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आते हैं। कोई 10th के होते हैं, कोई ग्रेजुएशन के होते हैं, तो कोई प्रोफेशनल होते हैं, तो कोई रिटायर्ड लोग भी आते हैं। मेरे पास तो हाउसवाइफ जो है जिनकी उम्र 50-55 साल की हो गई, वो भी आते हैं मेरे पास। और आपका कहना ठीक है, कुछ उनको शुरू में ऐसा अटपट सा लगता है कि हम लोग बच्चों के साथ सीख रहे हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक हमारे लोकल यहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम स्कूल के, वो मेरे क्लास में आई और इंक्वायरी के लिए। और उसने कहा सर देखिए मेरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं और मैं उनके साथ पढ़ूंगी तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप मुझे अलग से पढ़ाइए। तो उस समय मेरे पास समय था, तो मैंने उसको अलग से पढ़ाया, उनके घर जाके पढ़ाता था। तो ये तो होता है, परंतु क्या है कि उनको मैं कंफर्टेबल कर देता हूँ। सर आपके पास कभी कोई ऐसा स्टूडेंट आया जिसने बताया कि मैं इसलिए इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए, मेरा जॉब है या बिजनेस है जो भी है वो बिना इंग्लिश के मेरा काम चल रहा है, लेकिन किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, तो ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा एक कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि हमारी मजाक उड़ाए गए इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। पर कभी कभी कोई लोग कुछ बड़ा फनी इंसिडेंट देते हैं। एक बंदा आया मेरे पास और मैंने पूछा आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? तो उसने कहा सर आजकल लड़कियां इंग्लिश से इंप्रेस हो जाती हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। परंतु आपने जो कहा कि किसी को इंसल्ट महसूस हुआ, हो चुका है। एक स्टूडेंट था मेरे क्लास में, वो उसकी काफ़ी नागपुर में काफ़ी बिजनेस है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है वो, और उसका विदेश आना जाना रहता है। तो उसकी जो फ्रेंड सर्कल भी है सारे लोगों को इंग्लिश आती है, पर ये जो बंदा है उसको इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी, बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है वो। तो वो मेरे पास आया, कहा सर मेरी लोग तो मुझको जोकर बना के रखे, मैं इंग्लिश में कुछ बोलूँ तो पूरे दिन उसी वाक्य को लेके मेरी हंसी उड़ाते रहती है। तो इसलिए मुझको इंग्लिश सिखानी और उनको दिखानी है कि मैं भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो वो मेरे पास आया और फिर मैंने उसको इंग्लिश सीखा और आज वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। सर बैचेस के बारे में बताइए ना, मतलब बैचेस कितने हैं और क्या क्या टाइमिंग है, और मीन्स जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं तो वो मिक्सअप रहते हैं या आपने अलग बनाया कि ये एज के लोग इतने टाइम आए या स्टूडेंट आए, या चलता है सब? ठीक, एक्चुअली मेरा तो मिक्स बैच है, जेंट्स लेडीज छोटे बड़े एक साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है और मैं स्टूडेंट्स कम रखता हूँ। बैचेस की बात करें तो मेरे पास सुबह 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 ये स्पोकन इंग्लिश की है। फिर 11 से 2 मैं आइलेट्स पढ़ाता हूँ और आइलेट्स के बच्चे आते हैं यहाँ पे, और फिर मैं 2 घंटा थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। 4 बजे मैंने कहा कि मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ पे फ्री में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और फिर 5 से 6 फिर से मेरे स्पोकन इंग्लिश शुरू होते हैं, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। तो ये मेरे इंग्लिश क्लासेस है। और मिक्स बैचेस रहते हैं। गर्मी की छुट्टी में मैं 2 महीने बच्चों को पढ़ाता हूँ, किड्स को पढ़ाता हूँ, उसको वेकेशन बैचेस कहता हूँ। और बच्चों को बच्चे के तरीके से पढ़ाता हूँ, उनके साथ इंग्लिश में गेम्स कराता हूँ, 1 एक्ट प्ले कराता हूँ, नाटक, या उनको स्टोरीज बताता हूँ, फिर एक्शन सॉन्ग्स कराता हूँ और इंग्लिश के वोकैबुलरीज पढ़ाता हूँ और उनके साथ क्विज कराता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं एक इंग्लिश का माहौल तैयार करता हूँ, एक एटमॉस्फेयर। तो बच्चे लोग भी, उनको ऐसा नहीं लगता कि क्या होता है कि मम्मी पापा गर्मी में भी बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि साल भर तो पढ़ाई की, फिर से पढ़ने जाना है। तो जब यहाँ पे 2 महीने में आता है तो मैं इनको इंजॉयमेंट देता हूँ और वो एकदम अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं। यहाँ पे हिंदी अलाउड ही नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे पर इंग्लिश बोलेंगे। एक मेरे पास एक 3 साल की लड़की आई थी वेकेशन में, और मेरी ग्रैंड डॉटर वो भी 3 या 4 साल की थी, तो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। और ख़ास बात यह है कि मेरी ग्रैंड डॉटर को हिंदी नहीं आती है और उस बच्ची को इंग्लिश नहीं आती, तो वो फिर भी इशारों में बात करते थे। तो जब एक दिन वो स्टूडेंट मेरे पास आए, वो 3 साल वाली स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा सर मैं बाहर जाऊँ खेलने के लिए? मैंने कहा व्हाट डिड यू से? सर मैं बाहर जाऊँ खेलने के लिए?
मैंने कहा आई कांट अंडरस्टैंड बेटा, व्हाट आर यू सेइंग। उसने कहा सर आई प्ले। मैंने कहा ओके गो। तो मैं इंग्लिश में बोलना जरूरी है उस क्लास में। सर आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं क्या जो मीन्स कहते हो कि सर इंटरव्यू देना है, हम ग्रेजुएट हैं या फिर हमने 12th पास कर लिया है बट हम कहीं जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर जाकर हम हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो आप ऐसा प्रिपेयर करवाते हैं ये सब चीज़ें? देखो मेरे क्लास में मैं जो क्लास में जो कराता हूँ वो है बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी, और स्पीकिंग में है प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, डायलॉगिंग, डिबेटिंग और कॉन्वर्सेशन और इंटरव्यू टेक्निक। तो इंटरव्यू है जो सब जो दूसरे स्टूडेंट्स भी आते हैं ना, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कैंपस सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, उन लोग भी आते हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू कराता हूँ। और कोई स्टूडेंट्स आते हैं जैसे कि आईएलटीएस में स्पीकिंग जरूरी है, तो उन लोग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग कहीं और कर लेते हैं और स्पीकिंग के लिए फिर मेरे पास आते हैं, तो उनका भी जो स्पीकिंग का जो मॉक स्पीकिंग टेस्ट है यहाँ पे कराता हूँ, तो वो अलग से है। दोपहर में मेरे पास समय है तो दोपहर में ये क्लास लेता हूँ, स्पेशली इंटरव्यू टेक्निक के लिए और ये आईएलटीएस का मॉक स्पोकन क्लास। सर बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश ऐसा कुछ होता है? बोला जाता, मैंने बहुत जगह सुना है एक्चुअली ऐसा। हाँ मैंने भी सुना कोई क्लासेस ऐसे है कि उनका रहता है बेसिक इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश। पर एडवांस इंग्लिश होता क्या है और बेसिक इंग्लिश है क्या? बेसिक इंग्लिश का कहना है कि अगर आपको छोटे शब्द आते हैं, छोटे वाक्य बोलने आते हैं, तो वो हो गया बेसिक इंग्लिश। अब हम इंग्लिश सीखते क्यों हैं? कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम एक दूसरे से बात करें। अगर मैंने आपको इंग्लिश में कुछ वाक्य बोला और आप समझ गए मैंने क्या कहा, तो मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। हाँ एडवांस इंग्लिश, अगर आपको कहीं स्पीच देनी है या कोई कंपनी में सीईओ बनना है और वहाँ पे लोगों को इम्प्रेस करना है, तो एकदम बड़े बड़े शब्दों की जानकारी आपको सीखना है। एक बंदा मेरे पास आया था मैं और एक किस्सा बताऊं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने कहा सर मुझे पूरा ग्रामर आता है, पूरी स्पीकिंग ग्रामर आता है, और मैंने 8 महीने का कोर्स किया हूँ एक इंग्लिश क्लास में और मुझे ग्रामर पूरा आता है। उसने 2-3 रजिस्टर भी लाके दिखाया ग्रामर का। मुझे ग्रामर नहीं सीखनी है सर, मुझे स्पीकिंग सीखनी है। मैंने कहा यार तुमने 8 महीने वहाँ पे क्लास किया और तुमको स्पीकिंग नहीं आती? उसने कहा मुझे आती है सर। अगर आप मुझे कुछ ऐसे बोलने लगाओगे, वातावरण के ऊपर ऐसे बोलने लगाओगे तो मैं बोल दूंगा, परंतु जब मैं एक दूसरे से बात करता हूँ तो बहुत अटकता हूँ सर। और शब्द भी मेरे पास पूरे हैं, बड़े बड़े शब्द हैं। सर आपको मेट्रोसाइट का मतलब पता है? मेट्रोसाइट किसे कहते हैं? मैंने कहा मेट्रोसाइट नहीं भाई, मैंने तो मेट्रोसाइट नहीं सुना। मैंने कहा सर आप स्पोकन इंग्लिश टीचर हो और आपको मेट्रोसाइट का मतलब नहीं पता है? मैंने कहा डिक्शनरी में इतने सारे शब्द है, मेरे सारे दिमाग में इतने सारे शब्द है ही। खैर मेट्रोसाइट का मतलब क्या है? मैंने कहा सर मेट्रोसाइट का मतलब है मदर किलर। जो व्यक्ति अपनी माँ की जान लेता है ना तो मेट्रोसाइट कहते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसे कितने लोग अपने भारत में जिसने अपनी माँ की जान लिया, और कहा मैं वापरूं कि ये मेट्रोसाइट तो मैं ऐसे शब्द मुझे नहीं आते। So, how are you? I am good. And what's your name? My name is Bharti Saptane. Okay, so what are you doing? I am just now I did my 12th board. Now I am doing the classes of MST CT plus NEET entrance for medical field. Okay, so why did you join this class? For the improve my English, because I am very poor in English. I improve my confidence of to saying anyone else to in English. Hi Swamit, I'm Akansha Singh and I would like to tell about our class, how we learn English here. We learn English here by practice. We are too excited to come class to share our ideas, problems, feelings to our friends. We choose topic to discussion or talk what we want to say. I had fear that time because when I joined my DED college na, so there are so many girls talking in English, and I was thinking that why I don't talk in English. I understand what they said, but I have fear to talk with them.
But then I completed my D.Ed. Then one day I talked with my mother. I told her that mom, when I will learn English. Then she told me, I know one sir's class. So come, let's go there and talk with them. Then when I came here, I talked with sir. Then I joined the classes. Then I feel like yeah, I learn English. Then I gave my interview in Pune. So that the principal sir, with that principal sir, I talked in English and he select me. That day I could not speak English. And when my first day on this class, that day I was speaking so small English. Stories, action songs. We have also played. We we have studied here. We play games here, and many interesting things we do here. Hey bro, how are you? I'm fine. And what's your name? My name is Naveed Ahmed. So who told you about this class? Actually, I searched on Google. The atmosphere is very nice. Okay, you like it? Yeah, I like it. There are many classes, but why did you choose this? Actually, many students go abroad with the help of sir. So teacher is very good. When vacation classes starts na, so plays, so teachers English games, and we play many more things. Could you tell me anything about sir? Yeah, yes, sure. So it's jovial. We motivate here every day. Sir motivate us every day. This is a amazing thing in our class. We start to learn motivation at the first day. Sir teach me English games and studies and stories, poems. Sir makes us laugh a lot by his stories, and sir has a candid nature. Since how many days you are coming here? I recently completed my 1 month and started second month. So you are satisfied? Yes. Thank you. Thank you so much, Akansha. Nice to meet you, Sumit.